University, respected Dr. Vijay Kumar Singh sir, Registrar, Sarla Birla University, respected Dean and Engineering, S.B. Nanden sir, Chief guest of the session, Mr. Pankaj Kumar, Associate Dean, Dr. Partho Paul sir, faculty members, organizing members, and my dear students. On the behalf of Department of CSE, Sarla Birla University, I, Dr. Megha Sinha, gladly take this opportunity to welcome you all in this webinar on emerging technology, blockchain technology. We have with us today a young dynamic engineer having 12 years of industrial experience. He is not only an engineer but a successful entrepreneur as well. He started his career in 2009 as Invector Technology Chennai as a developer. Being entrepreneur, he has started his first company named Inforis Soft Solution ESS, and he is also a founder of Avira Global Solution Private Limited. And since 11 years, his company is setting a new footmark for the young entrepreneurs. He provides solutions around the globe. They provide also training on ethical hacking, robotics, process automations, web technology, Android development, etc. On the behalf of entire SBU management, I once again welcome you and gladly invite you to enlighten our students with your wisdom and experience. I believe the student present will definitely get benefited with your knowledge that you will share with us. Mr. Pankaj, sir, over to you now. Hello, good morning, everyone, and good morning, respected sir and madam. Today, we are here to learn about the blockchain, and it's a very new technology. And maybe you will be asked, thinking that okay, that introduction about me, I have to give myself a little bit also, but I will escape this. We'll talk at the end. First, we'll talk about the blockchain. Why blockchain? And whenever we have seen that in the industry, there are some disadvantage or there is some lack of technology, the new technology has arrived. Okay, the same way in year of 2008, okay, the person named called Satoshi Nakamoto, it's unidentified person, he developed this technology, and the first blockchain was a Bitcoin. And in 2009, he published his first IEEE paper, and then after, this started into the globe. And his motive was that your money, your bank. That means the power of the money should be given to the individual person hand, because we are into the technology world where you operate, the world is in your hand, right? That means you are everything is in hand. How? That means mobile, a smartphone. You can get connected in a second around the globe. You can talk to your friends. You can see the news, what happened into the US, what happened into the Brazil, what happened to in India, any corner of the globe also. The same motive, on the same motive. He has said that okay, because generally we have to dependent on others for everything. Then why not to develop such a technology where we will be depending on myself, depending on the people who are connected. There should be no central authority. That was the motive behind the blockchain. And to secure, because every
time, people see that, okay, the particular website is got hacked. They have someone money has been looted from their account. Their data has been stolen. So these are all are one of the motive idea behind this blockchain technology. When we talk about the definition of the blockchain, and it's not like that blockchain is only the Bitcoin or anything. Now slowly there are many companies are getting involved in this. Even our Indian government is involved. If you want to define the blockchain, as I mentioned here, the blockchain technology is a digital innovation. Why the term digital? Because we are connected digitally to the world. And this digital innovation that is poised to significantly alter financial market, right? And this all things can be done with help of cryptographic ecosystem and with help of trusted computing activities, and therefore the cyber security will be concerned as a whole over here. We have to understand why the term here digital innovation, the financial market, the cryptographic ecosystem, the trusted computing activities, and the cyber security. Digital innovation, that as we are growing today in the world digitally, so everything getting involved and developed on digital platform. Then financial market, because whenever you develop anything or when you want to have a power of financial system, right, then that is going to be altered, right? Why they specified especially this financial market? Take example, you want to open a bank account, right? What do you have to do? You'll be going to the bank, fill the form, then submit the required document, whatever the document they ask. Submit them, and you need immediately the account to be start because you are going to receive some fund, receive the salary. But what happened? It will not happen in the same day, and it will be approached to the 1 week, 15 days also. So that's why it's mentioned that it is going to alter the financial market within the next few years. That means you are going to depend on yourself. The financial power will be given to the individual person. And the cryptographic ecosystem, because already you are might be studied about the cryptographic subject. The idea behind this technology is nothing, it's a cryptography. All related to the public key, private key. And what you have learned about your data structure, the same data structure concept has been followed here. And when we talk about the trusted computing activity, that means who is the computing activity? What the computing activities is going to happen? That means you will become as a miner over there. It will be called term. We'll see that term. That term will come later as called as miner. That means they have given the power to you, individual person. That means you are going to evolve. You are going to give the computing activity. You are going to run this network, and all this network will be connected together. So it's the trusted network, trusted computing activities. And obviously, cyber security will be concerned over here, right? When cyber security, because you are seeing that nowadays everywhere you will be might be hearing that some company data has been leaked, Facebook data has been leaked, Amazon data has been leaked. Why it is happening? It's happening because of centralized system. Because they have the centralized system,
and from there it's get hacked. So they're concerned about the cyber security should be reduced here. Here also it happened, but it happened with a certain extent. So this all idea has kept together and developed a new technology that was called as blockchain. Then we'll talk about how we have come to this digital era in last 30, 40 years, you can say. That means the starting is of the computer. Let's see that and understand this the landmarks. Initial state, we had only computer. That is a digital device, right? It's just a computer was developed. The moment computer came, then they started people thinking that why we cannot connect over the world. That means connecting one people to another people. Then internet came. That means network. When network came, then after communication started. That means okay, now internet is there. We have connected from now how we can communicate each other. Then there's something starting early days it came called as Usenet, then email system, then your messaging, everything started coming together. When you started communicating, when you started emailing each other, then the organization thought why cannot we should have a application where we can give certain information to the users. We can sell some our product on internet society, right? That is the thing here. And then after the all this web era started. So e-commerce portal, enterprise application, everything started. And when we had all these together, then started coming mobile applications, mobile maps also, snaps, everything started coming together, right? Maybe I think until 2009, I think we have not seen the smartphone. Yes, from to after 2010 or 11 only in India, the smartphone started getting appeared, and now at least everyone will be having at least two smartphone the same way. So people need that. We should move on the mobile devices. And the people are connected through the mobile because might be few people doesn't have the computer, they have the mobile, but still they want to get connected. Then the social networking, social media started, and when we are get connected together, then finally it came for analytics. That means so many people are connected. On what basis we are talking? What basis the information required to share with among everyone? This all started thinking that. That's why Facebook came. Sorry. Facebook came, and what do you do on Facebook? You chat with the friends, you post some details, right? And when you search something on Google, what happened? It will give you that. If you are searching some product in a Google, and the moment you open the Facebook, you will see the different same kind of ad will get appear for you. How it happened? It's all happened due to the your machine learning, your analytics. That means they will analyze the data. That means what you want, and accordingly skip the prediction tree on your machine and the next Internet of Things, IoT devices. And when we had everything, even if you talk in data, in that even we have the data science, you can say that. That means you have used because social media came.
people, millions of people are there together. And in a fraction of seconds, millions, trillions of posts is happening. On what basis the people are posting? What is the idea behind that? Then the concept of big data. That's what, if you have studied the subject, or maybe you are aware, the concept of big data is came. And when we had all these things, even these things are not able to handle the very huge data, very huge network connection. Then finally it came the crypto industries, and that was started with the Bitcoin, and which was called as blockchain. And in 2015, the smart contract came. That means today, even any developer or any company, they want to develop any project, they will be going through the smart contract. Even our Indian government, they are doing this. And internet of value, internet of money. Why we have used these two word? That means the money is there on internet. You are going to pass your financial, your money through the internet, and internet is everything. You are going to be dependent on the internet. This is the landmark of the technology advancement which happened. And so far still we are in the crypto industry. That means technology. And now also even a company called Binance, they have come with the Binance, that is also a smart contract, Binance Smart Chain. And slowly so many new things are going to come. These are the era we have come through that, and we are now. Before proceeding, I'm not going to talk anything about the financial advice. This is for the educational purpose. And whatever you are going to do at your own risk. Okay. Please do the analysis. And this term will be said by everyone whenever anyone start talking about the blockchain. When we talk about the blockchain, the Bitcoin definitely it will come, because that was the first. That's what, the more you are going to dig this subject, more you will learn. Okay, the more you will discover, and it's become more complicated to get it, and finally you will learn more. And just keep an open mind. That means you can keep asking the question. Okay, and there is a lot of technical jargon, it's called as. Okay, but those are good to know, that you should know about those things. And you'll be thinking about these days and months to come, when it will come consume you and then promise. Okay, so what does that mean? That means we have to analyze everything. Okay, you learn, but implement in a good way. Okay, think before, because as every country there have certain term and condition, the law we have to follow. So do not dabble in Bitcoin unless you know what you are doing. It means you don't directly jump what you are going to do without knowing that. You should know first. You should analyze that. Then only you move on this. So that's why I said that no financial advice. So this is the tutorial educational session. Okay. So what are the preliminaries required? Okay. So guys, are you sleeping? So you are still awake. Dr. Mega, it is mute or it is unmuted? No, Can no, you? you are perfectly audible, sir. No, I'm Yeah, I'll talking listen to about you. the my dear student. So they are on mute or it's They are on mute mode, sir. They all are attendee. okay, fine. Now, if anyone, if they can want to communicate, they can communicate. So you can unmute them. Then only it will become more interesting.
And guys, please keep yourself mute. When you need that, yes, I should ask the query. You can, individual person, you can unmute it and you can ask me. Can you please unmute to everyone? So it will become more interesting. Otherwise, hope it is clear to everyone till here, right? Guys, are you there? Yes, sir. Okay. Yes, sir, please continue. Yes, sir. Yes. Yes, Let's sir. start by Ian. If you have the question, then please, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपको क्वेश्चन पूछनी चाहिए तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन एक एक करके, एक ही साथ सब लोग बोलेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है? अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत हो रही तो आप बताइए, हम हिंदी में भी बताएंगे। क्या हिंदी में बताना है? No, sir, it's fine. ठीक है, मैं बिहार से हूँ तो ऐसा नहीं है कि सर को हिंदी मालूम नहीं है। मुझे सर नहीं, पंकज कुमार, ओके ठीक है, मिस्टर पंकज, और आप मुझे पीके भी कॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको हिंदी में भी बता दूंगा अगर आपको दिक्कत है। तो हमने जो यहाँ बात किया, हमने ये बात किया है कि जो बिटकॉइन है एक डिजिटल इनोवेशन है, ओके। और हम लोग जो है वो इतने सारे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए अभी इस एरा में आए हैं जहाँ पे अभी ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और इंटरनेट ऑफ मनी की बात हो रही है। और हमने जो बात किया आपका कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस आपको नहीं दे रहे हैं, आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे इस टेक्नोलॉजी को उतना ज़्यादा आप इसके बारे में जान पाएंगे, उतना ही आपको और ज़्यादा ज्ञान मिलेगा और उतना ही ज़्यादा ये पेचीदा होते जाएगा। और जितना ज़्यादा आप पेचीदा होते जाएगा उतना ही आपको इंटरेस्ट भी बढ़ेगा इसको जानने के लिए। और जो भी आप बिटकॉइन के अगर बारे में सुन रहे हैं तो आपको डायरेक्टली जंप नहीं करना है, आपको उससे पहले एनालिसिस करनी है, आपको अपने स्तर पे जांच पड़ताल करनी है, सब चीज़ चेक करना है कि हाँ हम जो करने जा रहे हैं वो सही है या गलत है, क्या इसको कैसे किया जा सकता है, किसी दूसरे की बातों में नहीं फंसना है। तो इसलिए हम जो ये इंटायर सेशन आपको बता रहे हैं वो इंटायर सेशन ये एजुकेशनल सेशन है, इसमें हम आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे Sir, I have one question. या श्योर, बोलिए। Sir, like the blockchains that are centralized in the Bitcoin process, sir, if if this application can be used in the election system of a country, then it will be very easy to conduct election, because in today's generation, we can see that how Donald Trump used the social sites to win the election last term. And if the blockchain will block and if the election will be done by the blockchain system, then it will be a decentralized system. Then there will be no threat that if a voter can vote to someone, it will not be leaked. Yeah, thank you. Yeah, good point. Okay, we'll come to that also. That is true, and we'll come to that. So let's little bit know about what you said about Bitcoin is not a centralized, it is decentralized. Okay, so I'll come to that, then I will explain. Okay, so what Yes. you can read, you can go to the bitcoin.org, because there is no, this was the first blockchain and Bitcoin, so you can go to the directly website and there's the Bitcoin PDF will be there, okay. And there is the book of Satoshi, okay, the person who developed this, the holy book of Satoshi is there. You can read this one, okay. It's a 9-page only, and 1 page is there for reference, and it's almost some 8 pages will be there. This is the first on the, this you can say the Bitcoin
or you can say the blockchain. You can just explore this. You can go through this, and a seminar paper, it was published, that one, and quite technical, but a workshop will cover the several topics in the paper. When you go through that, and you will get the several other references also. Okay, so when we have the potential, like, right, as we said, that like email, then web, then we came to e-commerce, फिर मोबाइल, सोशल, फिर आपका फाइनेंशियल, और फाइनली ब्लॉकचेन. तो आपको ये पेपर अगेन एंड अगेन पढ़ना है, तभी जाके आपको ये समझ में आएगी, क्योंकि ये टोटली एक अलग टेक्नोलॉजी है. अगर आपने इसको समझ लिया और आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना लिया जो कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत फायदेमंद हो, तो आप एक ब्लॉकचेन डेवलपर के लिए अगर कम से कम अगर पैकेज की बात करेंगे तो मिनिमम आप 20 लाख के ऊपर आप चले जाइए, अगर आप इस चीज़ को डेवलप कर सकें और इसको समझ लिए. तो इसके समझने के लिए आपको सबसे बड़ा आपका बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रांग होना है. ये नहीं आपका बहुत हाई लेवल प्रोग्रामिंग चाहिए. आपको अगर C++ का भी ज्ञान है, ये सारे जितने से सारे क्रिप्टो करेंसी आ रहे, सारे बहुत सारे C++ पे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे. तो यहाँ पे आपको डायग्राम देखकर ये समझ में आ रहा होगा कि हमने कहीं ये चीज पढ़ा है, राइट. ये डायग्राम कैसे इसका है? ब्लॉक डायग्राम. ब्लॉक डायग्राम किस चीज का है? आपने कोई सब्जेक्ट ऐसा पढ़ा है जिसमें ऐसा डायग्राम बना हुआ? आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है? डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है? लिंक लिस्ट. यस, करेक्ट. तो जिन लोगों ने लिंक लिस्ट पढ़ा है उनको ये, अगर ये आपको याद होगा, तो ऐसा ही लिंक लिस्ट में भी हम बनाते हैं. एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड रहता है और बीच में कोई भी नोड ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, राइट. तो सेम उसी पे आधारित ये हमारा ब्लॉकचेन होता है, लेकिन थोड़ी सी उसमें चेंजेस है. ओके, सो ब्लॉकचेन का बेसिक जो है वो लिंक लिस्ट से रिलेटेड है. तो जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा एक पहला जो है ग्रीन कलर का है, फिर उस ब्लैक है, दैट मीन्स अगला नोड है, उससे फिर अलग हुआ, अगले नेटवर्क से कनेक्टेड हुआ, और इतने सारे अलग अलग से भी कनेक्टेड है और कंटिन्यूसली है चीज. लेकिन आप अगर लिंक लिस्ट की बात करेंगे तो लिंक लिस्ट में आपने क्या देखा होगा कि लिंक लिस्ट में आप या तो ऐड मॉडिफाई करेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं रहता है. ठीक है, तो थोड़ा सा अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट उसी पे आधारित है. अब देखिए, जो हम लिंक लिस्ट की बात कर रहे थे और जो हमने स्टार्टिंग में बिटकॉइन टेक्नोलॉजी के बारे में बात की, तो ब्लॉकचेन अब जो बात करेंगे कि ब्लॉकचेन को आप डिफाइन किस वे में करेंगे, तो नाम से ही क्लियर है आपका ब्लॉक चेन, राइट. एक ब्लॉक होगा और उसका चेन होगा, मतलब कंटिन्यूसली ये चेन होते चला जाएगा, एक के बाद एक के बाद एक, तो ब्लॉक एन तक जाएगी और सारा ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा. तो अगर हम टेक्निकली डेफिनेशन की बात करेंगे ब्लॉकचेन की, तो ब्लॉकचेन क्या है? एक लिंक लिस्ट है. लेकिन अगर आपको याद होगा कि हमने अब जब लिंक लिस्ट पढ़े थे, तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, पहला जो होता है उसमें हेड पॉइंटर होता है, और हेड पॉइंटर कनेक्टेड होते हैं फर्स्ट नोड से. तो यहाँ पे क्या होती है, हेड पॉइंटर की जगह पे जो रेगुलर पॉइंटर हम यूज करते हैं, उसके जगह पे यहाँ पे हो जाता है हैश पॉइंटर. तो अगर टेक्निकली डेफिनेशन की बात करेंगे तो ब्लॉकचेन इज अ लिंक लिस्ट दैट इज बिल्ट विथ हैश पॉइंटर्स इंस्टेड ऑफ रेगुलर पॉइंटर्स. ये है टेक्निकल डेफिनेशन. अगर आप सेमी टेक्निकल की बात करेंगे या सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक उसको भी कहते हैं, उस पर डिपेंडेंट है. अगर बात करेंगे डेफिनेशन की, तो ब्लॉकचेन क्या है? एक ओपन है, एन ओपन, borderless, decentralized, public, trustless, permissionless and immutable records of transaction. कहने का मतलब ब्लॉकचेन है, ओपन है, मतलब कोई भी लोग उसमें जुड़ सकते हैं.
बॉर्डरलेस है, ऐसा कोई ये नहीं कि आपको इस कंट्री तक ही आप उसका लिमिटेशन है, किसी भी कंट्री में कहीं भी यूज किया जा सकता है। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब वो सेंट्रल किसी पे आधारित नहीं है कि अगर वो जो डिसाइड करेगा वही होगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। पब्लिक जैसा बताया सबके लिए पब्लिकली ओपन है, कोई इसमें कोई कुछ भी छुपा नहीं सकता है। यू कैन नॉट हाइड एनीथिंग, कोई भी ट्रांजेक्शन आप छुपा नहीं सकते। ट्रस्टलेस, ट्रस्टलेस क्यों है? ट्रस्टलेस का कहने का मतलब कि इसके पास लेस ट्रस्ट है। ट्रस्टलेस है क्योंकि हैकर्स को दिक्कत। परमिशन लेस, किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है कि नहीं कोई अगर आपके ब्लॉग को रोक दे, कोई नहीं कर, ये कोई परमिशन वहां पे देने की जरूरत नहीं है, तो कोई परमिशन नहीं चाहिए। और इम्यूटेबल रिकॉर्डर मतलब डेटा जो है आपका काफी सिक्योर है और ये आपका आगे मूव होता रहेगा। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेफिनेशन देखेंगे कि फाइनेंस के टर्म में इसको कैसे बात करेंगे, तो फाइनेंस के टर्म में हम कह सकते हैं इसको ब्लॉकचेन इज अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑफ पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन। लेजर का मतलब क्या होता है? लेजर का मतलब कुछ यहाँ पे टर्म यूज होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, जैसे लेजर हुआ, पीर हुआ, इम्यूटेबल हुआ, डिसेंट्रलाइज हुआ, ये सब यूज करते हैं। तो लेजर का मतलब हो गया कि जैसे अगर आप किसी के पास अगर आपका अपना दुकान होगा या कुछ भी होगा, तो आप क्या कहते हैं, आप उसका खाता मेंटेन करते हैं, लिखते हैं कि कितना पैसा आया, किसको आपने दिया, कहाँ से आया, कौन से डेट में आया, तो एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं। तो वही रजिस्टर लेजर कराता है। तो ये लेजर क्या हो गया? ये लेजर हो गया डिजिटली हो गया। और पीर का मतलब हो गया कि जो लोग जुड़े हुए हैं, तो एक लोग से दूसरे लोग को जो लेजर डेटा जो ट्रांजेक्शन होती है वो डिस्ट्रीब्यूट जो होती है और पब्लिकली है, वो हमारा ब्लॉकचेन कहलाता है। क्लियर? अब बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क की। तो ये सब बेसिक है जो आपको जानने की बहुत जरूरत है बिफोर यू जंप ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो मैं आपको कोई ऐसा यहाँ पे ब्लॉकचेन डेवलप कैसे करना है वो नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि उसको बताने के लिए एटलीस्ट 1 वीक चाहिए, मिनिमम 7 डेज। वो 1 आवर 2 आवर या 1 डे में नहीं हो सकती। आप एक्सप्लोर मोर कर सकते हैं, मैं आपको आइडिया बता दूंगा। ठीक है, तो हम जब नेटवर्क की बात करेंगे, तो नेटवर्क पहले जो अभी भी है सेंट्रलाइज्ड। फेसबुक क्या है? सेंट्रलाइज्ड है। आपका बैंक क्या है? वो भी सेंट्रलाइज सिस्टम है। तो ऐसा सिस्टम जहां एक जगह से उसको मॉनिटर किया जाता, अगर वो बंद हो गया तो सारा कुछ बंद हो जाएगा। तो वो हमारा होता है सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। दूसरा आपका है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या हुआ कि एक सेंट्रलाइज्ड हुआ, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया किसको? दूसरे सेंट्रलाइज्ड को। फिर वो सेंट्रलाइज उसको दूसरे को मूव करेगा। इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। तो बात करेंगे डिसेंट्रलाइज्ड की, तो डिसेंट्रलाइज में कोई भी एक सेंटर नहीं होगा। अगर एक बंद भी हो जाता है तो बाकी सारे चलते रहेंगे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड में भी आपको अगर एक बंद होता है, लेकिन वहां पे सारे कनेक्टेड नहीं है। डिसेंट्रलाइज में होता है क्या कि कनेक्टेड होने चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज में सारे सेंटर जो है वो कनेक्टेड है एक दूसरे से। लेकिन अब बात आएगी फिर पीयर टू पीयर की। हमने डिसेंट्रलाइज तो बता दिया, लेकिन पीयर टू पीयर क्या होगा? पीयर टू पीयर में क्या होगा कि वहां पे कोई सेंट्रलाइज नहीं होगा, कोई डिसेंट्रलाइज भी नहीं होगा। जितने सारे इंडिविजुअल होंगे, पीर, पीर का मतलब हो गया हम लोग, आप मान लीजिए हम है, आप है, वो पीर कहलाता है। ठीक है, वो नोड जो होता है वो कहलाता है। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे पूरे में। तो अगर एक बंद होता है, इससे कभी भी अगले किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता है, नो डिफरेंस। So the entire network will be keep running smoothly. The transaction can be checked, the details can be checked anytime with any peer. ये आपका टाइप्स ऑफ नेटवर्क है। ओके, अब ये
हाइपर साइकिल है, ठीक है, जो कि 2020 में पब्लिश किया गया है। ओके, गारंटर, ये आपका वेबसाइट यूआरएल है, आप वहां पे देख भी सकते हैं। तो आप यहाँ पे अब थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होगी यहाँ पे, बस यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे हमारा जो एक्सपेक्टेशन, टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट बढ़ता गया और डेवलपमेंट होते गई। तो हमने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था, पहले हमारे पास कुछ नहीं, आज क्या है, आज के डेट में अगर आप बात करेंगे तो आप देखिए हर चीज ऑनलाइन सिस्टम हो रही है। दैट मीन्स ऑनलाइन मीटिंग सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट हो गई है मार्केट में। हर कंपनी उस दौर में दौड़ लगा रही है जिसमें हम एक ऑनलाइन सॉल्यूशन बनाएं, जिसमें स्मूथली हमारा ऑनलाइन मीटिंग हो सके, ऑनलाइन क्लासेस कर सके लोग। तो ये चीज है। तो ये इस चीज को बताने की कोशिश की गई है कि एक्सपेक्टेशन कैसे लोगों की बढ़ती चली गई है। लास्ट आप देख सकते हैं 2 to 5 ईयर्स में, लेस देन 2 ईयर्स में, जो आपका व्हाइट कलर का है 2 ईयर्स, लेस देन 2 ईयर्स, 2 to 5 ईयर्स, ये आपका जो लाइट दैट मीन्स स्काई कलर है, और ब्लू 5 to 10 ईयर्स में। तो आप देख सकते हैं 5 to 10 ईयर्स में बहुत ज्यादा है रिक्वायरमेंट। क्या क्या रिक्वायरमेंट हुआ, कंटेंट फ्लो हुआ, वर्चुअल इवेंट्स, आईओटी, आपका स्मार्ट वर्क प्लेस, सारे चीज स्टार्ट शुरू हो गए। एम्प्लॉय वेलनेस, रिकॉग्निशन सिस्टम, टेस्ट, इंटरनेट एज ए सर्विस, ओके, सब चीज स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी जो है ना, डिमांड बढ़ते चला गया, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ते गई, और टेक्नोलॉजी उसी तरह ये आते गई मार्केट में। ये चीज जस्ट इसके बारे में आइडिया है। अब हम बात करेंगे कि क्यों ब्लॉकचेन। ठीक है, हमारे पास डेटा साइंस है, एनालिटिक्स है, मशीन लर्निंग है, तो क्यों ब्लॉकचेन ही? ठीक है, तो जब हम बात करेंगे कि ब्लॉकचेन की, तो पहला चीज आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी हर जगह मैटर करती है, आपका चाहे डिसेंट्रलाइज्ड हो चाहे सेंट्रलाइज सिस्टम हो। तो ब्लॉकचेन में सिक्योरिटी जो है इनहेंस हुआ। दैट मीन्स ये रेसिस्ट किया हैकिंग को, दैट इन हैकिंग बाय डिसेंट्रलाइज द डेटा स्टोरेज लेयर। हैकिंग क्यों होती है? आप कोई भी वेबसाइट जो सुनते हो कि अगर ये वेबसाइट हैक हो गई या अमेजोन की डेटा लीक हो गई, लीक होने का कारण क्या होता है? कारण ये है कि वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है और वो किसी सर्वर पे स्टोर है। ठीक है, तो जैसे ही अगर वो सर्वर का मतलब आपके जैसे कॉलेज का वेबसाइट है जहां पे चल रहा हो, वो सर्वर कहलाता है। तो जैसे अगर वो हैक हो जाए, किसी ने उसको हैक कर लिया, और एक्चुअली हैक नहीं कहा जाता, उसको अटैक कहा जाता है। ठीक है, अगर किसी ने उसको अटैक किया और उसके डेटाबेस को ही निकाल लिया, तो सारे डेटा चले गए, मतलब लीक हो गया डेटा। तो ये पॉसिबिलिटी है सिर्फ सेंट्रलाइज सिस्टम में, और जिसके कारण से आपका डेटा चोरी हो जाती है। तो इस सिक्योरिटी को कंसर्न किया गया ब्लॉकचेन में कि हमको इनहेंस करना है सिक्योरिटी फीचर्स को। उसके बाद हम जब भी, अगर आपके पास कोई भी ऑनलाइन रिकॉर्ड है, एग्जांपल कि डिसएडवांटेज और एडवांटेज हर टेक्नोलॉजी की होती है। अब जैसे कि कोई बच्चा, स्टूडेंट पास नहीं किया, ठीक है, हमने मार्क्स इंटर कर दिया ऑनलाइन, ठीक है, अब सोचो वो बच्चे को पास करना ही है, कराना ही है, 3-4 बार हम उससे टेस्ट ले ले, पास करना है। तो क्या होता है, हम आपसे टेस्ट लेंगे, ठीक है, 3 बार 4 बार आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे, फिर से टेस्ट लिखेंगे, तो क्या होगा, आपका डेटा हम अपडेट कर देंगे, राइट, या अगर डिलीट करना है डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी थी सेंट्रलाइज में। लेकिन ब्लॉकचेन में डेटा आप अपडेट नहीं कर सकते हैं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, कोई भी डेटा आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, केवल होगा अपेंड, मतलब सिर्फ आप ऐड कर सकते हैं। मतलब जो आपका एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, आपका एक रिकॉर्ड कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट रिकॉर्ड की बात करेंगे तो सिर्फ
अपेंड होगा, और इसी अपेंड्स को हम लोग बोलते हैं इम्यूटेबल रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स, एंड इसको हम लोग प्रूफ ऑफ स्टेट भी कहते हैं। मतलब आपका सिर्फ ऐड होते जाएगा, आप ऐड कर सकते हो, लेकिन पिछला जो भी रिकॉर्ड है उसको आप ना डिलीट कर सकते हो, ना ही मॉडिफाई कर सकते हो। कैन बी कॉस्ट टू स्टोर एनीथिंग ऑफ द वैल्यू दैट कैन बी डिजिटाइज्ड? ऑब्वियसली स्टोर करने के लिए स्पेस तो चाहिए, और बहुत कम स्पेस की जरूरत होती है, ज्यादा जरूरत भी नहीं होती है। यहाँ भी स्टोरिंग होती है डिजिटल फॉर्म, बट डिजिटल फॉर्मेट में। इफिशिएंसी इंप्रूव हो गई, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है वो सबके सामने में अवेलेबल है और बहुत फास्टली होती है, तो ये इम्प्रूव किया इफिशिएंसी को। उसके बाद लोअर ट्रांजैक्शन फीस, दैट मीन्स जब हम अगर ट्रांजैक्शन करते हैं कोई भी ऑन ब्लॉकचेन पे, तो ट्रांजैक्शन फीस बहुत ही कम होती है, और यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। मतलब आपका कोई भी सेंट्रल ट्रस्ट नहीं है, ये सिर्फ ब्लॉकचेन ही है जो एक डिजिटल ट्रस्ट है, हमारा ऑनलाइन ही है जो डिजिटल ट्रस्टलेस ट्रस्ट है, इसीलिए इसको कहा गया ट्रस्टलेस। दैट मीन्स कोई सेंट्रल बॉडी नहीं है, तो हम उस पर, सेंट्रल बॉडी रहेगी तब हम उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, राइट? तो यहाँ पे डिजिटल ट्रस्ट है, इसको हम कहते हैं ट्रस्टलेस। ओके, एंड डिसइंटरमीडिएशन, ये ओपन है एंड ट्रांसपेरेंट है, मतलब कोई भी किसी का भी रिकॉर्ड देख सकता है, ट्रैक कर सकता है और वैलिडेट कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है, कोई भी किसी का भी, वो हम आपको बताएंगे। एंड ये अल्टीमेट है प्रूफ ऑफ वैल्यू ओनरशिप, और बाईपासिंग गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेशंस, इंडिविजुअल्स एंड क्रिमिनल्स। ठीक है, तो इसका मिसयूज भी लोग करते हैं, क्योंकि आप ये नहीं इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है। सो प्रूफ ऑफ वैल्यू जो होता है, यहाँ पे जो ओनरशिप की बात होती है, तो जिसके पास प्राइवेट की होगी वही ओनर है इसका। हम लोग यहाँ सेंट्रल अथॉरिटी को बाईपास कर रहे हैं, मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे लाइक हमारे इंडिया में, जैसे अगर फाइनेंशियल टर्म की बात आती है तो आरबीआई आती है, तो हम इसमें वो चीज़ बाईपास हो रही है। ठीक है, और कोई भी इंडिविजुअल, इन सारे इंडिविजुअल्स लोग ही इन्वॉल्व है, और ऑब्वियसली जब जब टेक्नोलॉजी आएगा, कोई भी अच्छी चीज़ आएंगे तो बैड पीपल आएंगे ही, तो क्रिमिनल्स भी स्टार्ट हो जाते हैं उसमें। ओके, एंड लेकिन ये ऑडिट ट्रेल्स के लिए बहुत पावरफुल है, क्योंकि आप छुपा नहीं सकते हो। अगर आपका एड्रेस अगर मुझे मालूम है, तो हम उस एड्रेस से ये निकाल सकते हैं कि आपने कितना ट्रांजैक्शन किया है, किसको भेजा है, मतलब किस एड्रेस पे भेजा है, किसको भेजा है नहीं पता चलेगा, लेकिन किस एड्रेस पे भेजा है, कितना भेजा है, कितनी बार आपने ट्रांजैक्शन किया है। तो ऑडिट करना बहुत इजी है, आप इजीली ऑडिट कर सकते हैं। कुछ और डेफिनेशन जो हम लोग ब्लॉकचेन में यूज करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे लेजर, जैसे बताया, लेजर क्या है? लेजर होता है रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन। हमने बोला आपको ट्रस्टलेस, मतलब नो रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रस्टेड इंटरमीडिएटरी, दैट मीन्स कोई भी जो इंटरमीडिएट होते हैं उसके ट्रस्ट का कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। ये सारे नेटवर्क पे डिपेंडेंट होते हैं, सारे पीर पे डिपेंडेंट है, उसको बोला जाता है ट्रस्टलेस। क्रिप्टोग्राफिक आइडेंटिटी, मतलब जो पीर्स होते हैं तो वही आपका क्रिप्टोग्राफिक आइडेंटिटीज है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी इशू आइडेंटिफिकेशन नहीं इशू किया जाता है। आपका जो की है वही आपका अथॉरिटी है, वही आपका आइडेंटिफिकेशन है। एक टर्म आती है इम्यूटेबल, मतलब वंस कमिटेड, मतलब एक बार आपने डेटा सबमिट कर दिया तो आपको रिवर्ट बैक नहीं कर सकता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज को कहा जाता है आपका इम्यूटेबल। उसके बाद होता है कंसेंसस। ओके, दैट मीन्स द नेटवर्क यूज कंसेंसस टू ऐड डेटा टू ब्लॉकचेन, मतलब अगर आपको डेटा ब्लॉकचेन पे और ऐड करनी है
तो कंसेंसस कहा जाता है इसको। उसके बाद सेंसरशिप रेसिस्टेंट, दैट मीन्स कोई भी किसी समय कभी भी कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हाँ कोई एज लिमिट है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। तो कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी नोड्स, कोई भी यूजर्स कैन नॉट बी सेंसर्ड सो लॉन्ग एज दे आर अडेयर टू प्रोटोकॉल रूल। मतलब आप जब तक प्रोटोकॉल रूल फॉलो कर रहे हैं आप नेटवर्क में रह सकते हैं। और उसके बाद जो हमने बात की डिस्ट्रीब्यूटेड या डिसेंट्रलाइज में, तो हमारा पीर टू पीर नेटवर्क, नो सिंगल पॉइंट ऑफ प्रोटोकॉल फेल्योर, दैट मीन्स कंट्रोल और फेल्योर। पीर्स जो है कि कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी वो छोड़ सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट करता है। नेटवर्क फंक्शन जो होता है वो पीर के थ्रू होता है, क्योंकि वो रन करते हैं, कोई मैलिसियस इसमें नहीं आ सकता है। कॉम्पिटिटिव बढ़ गया है, लोग खुद चाहते हैं कि हम और ज़्यादा अपने पीर को इंक्रीज करें। तो ये सब कुछ स्मॉल डेफिनेशन है और स्मॉल पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये टर्म आप कोई भी, आप या तो बिटकॉइन के बारे में पढ़े, ब्लॉकचेन में पढ़े, या आप फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े, ये सारे टर्म वहां पे भी आपको यूज होंगे जब आप डेवलप करने जाएंगे। तो क्या है, हमने जैसा बात किया कि वेयर इज ब्लॉकचेन, सो इट इज डिसेंट्रलाइज्ड। हम लोग इसमें नोड यूज करते हैं जो कि ये होल्ड करता है क्या, सारे कॉपी ऑफ ब्लॉकचेन को। जितने सारे ब्लॉकचेन के कॉपी होते हैं वो सारे होल्ड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जब भी न्यू ब्लॉक रिलेट होता है तो क्या होता है कि वो वैलिडेट हो जाती है, उसका जो डेटा है ना वो पूरे ब्लॉकचेन पे, मतलब जितने सारे पीर कनेक्टेड है सबके पास ये डेटा अपडेट हो जाती है। ये आपका यहाँ पे ब्लॉकचेन में है। यू कैन थिंक ऑफ इट एज नोड, दैट मीन्स नोड का मतलब क्या, मैंने आपको बताया पार्टिसिपेंट, यूजर्स। और सारे यूजर्स के पास तो पूरे डेटाबेस, जितने सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, उसके सारे रिकॉर्ड हर पार्टिसिपेंट्स के पास रहती है। कोई अटेम्प्ट कर सकता है इसको टेम्पर करने के लिए, मतलब उसको डेटा को चुराने के लिए, लेकिन जैसे वो टेम्पर करने की कोशिश करेगा वो अगले नोड से वेरीफाई किया जाता है, और अगर मैच नहीं किया तो इमीडिएटली ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है। इसमें कोई ये नहीं है कि हमें खुद का एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाना है और जब कोई हैक कर रहा हो तो उसको स्टॉप करना है, वो ऑटोमेटिक, क्योंकि डेटा, जब भी डेटा होगा आप एक सिस्टम से डेटा चुरा लोगे, लेकिन अगले सिस्टम का, यहाँ पे मिलियंस ऑफ सिस्टम कनेक्टेड है, लाखों सिस्टम, लाखों पार्टिसिपेंट कनेक्टेड है एक दूसरे से। आप एक का सिस्टम चुराओगे, लाखों का तो नहीं चुरा पाओगे। तो जैसे एक का चुराएंगे और डेटा कोशिश करेंगे मैच करने का, उसको एडिट करके मैच करने के लिए, वो मैच ही नहीं होगी। जब मैच नहीं होगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो टैम्पर नहीं हो सकता है इसमें। और जितने सारे नोड्स है वो सब कंसेंसस रूल पे आधारित है, ठीक है, और उनका अपना रूल है। और नोड्स रिजेक्ट किया जा सकता है कि अगर वो ऑफेंडिंग ट्रांजेक्शन है तो वो ऑटोमेटिकली वो एल्गोरिदम में अवेलेबल है। ओके, जब हम बात करेंगे प्रूफ ऑफ स्टेट की, तो प्रूफ ऑफ स्टेट में क्या होता है कि जैसे एग्जिस्टेंस, मतलब जो सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड है, जो हम रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन होती है उसका टाइम स्टैम्प के साथ होती है, किस टाइम पे ट्रांजेक्शन हुआ है वो भी यहाँ पे रहती है। तो एग्जिस्टेंस मैटर करता है। ओनरशिप, मतलब वो उसको कौन ओन करता है, उसका ऑनर कौन है। देन इंटीग्रिटी, मतलब नो डबल स्पेंड ऑफ डिजिटल एसेट्स। आप यहाँ पे स्पेंड, दैट मीन जो आपके पास डिजिटल एसेट्स है, डिजिटल एसेट्स का मतलब सारे क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पे कहलाएंगे। ओके, एंड प्रूवेंस, दैट मीन्स हिस्ट्री ऑफ ऑनर्स, आप ये चेक कर सकते हैं। ट्रेसेबिलिटी, दैट मीन्स आप ट्रेस कर सकते हैं, किसी भी मूवमेंट को आप चेक कर सकते हैं। ये आपका होता है प्रूफ ऑफ स्टेट में ऑन ब्लॉकचेन। और अगर आपको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, ठीक है, तो एक्सप्लोर और ज़्यादा करने के लिए आप ये सारे रेफर कर सकते हैं। आप इसका फोटो ले सकते हैं, मैं एनीवे पीपीटी आपको शेयर कर दूंगा, आपके सर और मैडम के थ्रू आपको मिल जाएगी।
अगर आपको एक्सप्लोर करना है ज़्यादा तो आप ये blockchain.info पे चले जाए, blockexplorer.com पे चले जाए। ये एक्सप्लोरर्स है ब्लॉकचेन, बिटकॉइन ब्लॉकचेन का। उसके बाद blocktrail.com/btc है, ये भी वेबसाइट है। और अगर आप इसका एल्गोरिदम डाउनलोड करके कुछ डेवलप करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन को एज ए फिनेंशियल ही सिर्फ देखा जा रहा है, आप इसके बिटकॉइन कोर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका डाउनलोड लिंक यहाँ दिया हुआ है और आप डाउनलोड करके आपको जितना ज़्यादा मॉडिफिकेशन करना है, आप जैसा उस पर डेवलप करना चाहते हैं उसको डेवलप कर सकते हैं। और अभी तक में पूरी दुनिया में जो ब्लॉकचेन का साइज है वो 300 GB है। आप सोच लीजिए, क्योंकि आप जैसे अगर सोचेंगे कि इसका ब्लॉकचेन आपके सिस्टम पे रन हो जाए, तो ये आपके सिस्टम पे रन होने के लिए आप सोचिए 300 GB इंटरनेट से डाउनलोड होना कितना टाइम लगेगा। तो जो भी कंपनी अगर बिटकॉइन ब्लॉकचेन को लेकर अगर टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहती है, तो उसके लिए पहले ये बिटकॉइन का ब्लॉकचेन उनको अपने सिस्टम पे अपडेट करना पड़ेगा। तो 300 GB की फाइल उनके सिस्टम पे डाउनलोड होगी। मतलब वो फाइल नहीं है, वो सारा ट्रांजेक्शन है हैश फॉर्मेट में। आप ये नहीं देख सकते हो कि यहाँ किस क्या भेजा है, उसमें आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। सिर्फ आपको ये दिखेगा हाँ ऐसा है कि ये डेटा ट्रांजेक्शन है, आपको रनिंग मूवमेंट में दिखाएगी। तो ये सब चीज़ है, आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सब एक्सप्लोरर है बिटकॉइन के बारे में, और आप बिटकॉइन ब्लॉकचेन के बारे में आप देख सकते हैं। तो अब बात रहेगी कि ब्लॉकचेन पे जो ट्रांजैक्शन होती है वो कैसे होती है, ठीक है। तो जैसे एक कोई भी एक ए है, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन कर रहा है बी को, उसकी तरफ बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोग ट्रांजैक्शन करेंगे, तो क्या होगा, वो सारे ब्लॉक्स में जाएंगे। ओके, इस ब्लॉक्स में आएंगे ट्रांजैक्शन 1 ट्रांजैक्शन 2, और जैसे ब्लॉक्स में आएगा तो ब्लॉक्स क्या करेगा, वैलिडेट करेगा, जितने सारे नोड्स होंगे उसको वैलिडेट ब्लॉक में करेगा। तो क्या करेगा, ये जाएगा ब्लॉक एन में, फिर इसका रिकॉर्ड जाएगा ब्लॉक 2 में, ब्लॉक 3 में, सारे ब्लॉक में इसके सारे ट्रांजैक्शन चले जाएंगे। ऐसा नहीं है ये ट्रांजैक्शन सिर्फ एक ही ब्लॉक में हो, ये सारे ब्लॉक में जाएंगे। इसीलिए ये सिक्योर है, क्योंकि सारे के डेटा, सारे के ट्रांजैक्शन हैश ये सारे में रहते हैं, सारे ब्लॉक्स में। तो अगर कोई भी एक चेक होगा तो ऑटोमेटिकली उसको रिजेक्ट कर देगा। अब बात करेंगे जैसे हाउ इज अ ब्लॉकचेन बिल्ट। जैसा मैंने आपको बताया कि एलाइस एक पर्सन है जो सेंड करता है बॉब को एक ट्रांजैक्शन। क्या होगा, ट्रांजैक्शन जाएगा ब्लॉकचेन नेटवर्क पे, दैट मींस नोड पे। तो क्या होगा, नोड क्या करेगा, वैलिडेट करेगा ट्रांजैक्शन को, मतलब ये सही है या नहीं है उसको वैलिडेट करेगा। जब वैलिडेट हो जाएगी तो फिर आपको जाके ट्रांजैक्शन दिखाएगा कि हाँ वैलिड है और इसको प्रोपोगेट करना चाहिए, मतलब आगे प्रोसेस के लिए फर्दर बढ़ना चाहिए। जब ये होगा तो वो क्या होगा, वॉलंटियर, दैट मीन्स कोई भी एक नोड, ठीक है, कलेक्ट करेगा वैलिड ट्रांजैक्शन को और उसको ब्लॉक में डालेगा। जब ये हो जाएगा वेरिफिकेशन कि हाँ ये सही है, तब उसको वो ब्लॉक पे डालेगा। जब ब्लॉक पे आ जाएगी तो क्या होगा, ब्लॉक में ऑटोमेटिकली वहां पे हैश, मतलब फिंगरप्रिंट्स प्रीवियस ब्लॉक का उसके साथ उसमें आ जाएगा। जब ब्लॉक कंटेंट हैश कंटेंट होगा तो फिर वो नेटवर्क पे ब्रॉडकास्टेड हो जाएगा, मतलब उससे जितने सारे नेटवर्क कनेक्टेड है सारे नेटवर्क पे वो सारे ब्लॉक भेज दिए जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब उसमें ये नहीं कि हमें भेजना है, वो ऑटोमेटिकली एक बार जैसे ब्लॉक आ गया, हैश वैल्यू आ गई, मतलब ऑटोमेटिकली सारे पे चली जाएगी। और जितने सारे दूसरे नोड होंगे वो सारे को वैलिडेट करेंगे, अपेंड करेंगे, दैट मीन्स वो ऐड करेंगे, जितने सारे न्यू ब्लॉक मिलते जाएंगे वो ब्लॉक्स को ऐड करते जाएंगे। और जब ब्लॉक ऐड हो जाएगा तो ब्लॉकचेन पे सिर्फ अपेंड होते चला जाएगा, ऐड होते चली जाएगी। और जब सारे ऐड हो जाएंगे तो फिर आपको चेंजेस टू द हिस्ट्री ऑफ ब्लॉकचेन आर टेम्पर एविडेंट, मतलब अब ये आपका टेम्पर प्रूफ हो गया। अब कोई भी इस चीज को टेम्पर नहीं कर सकता है, क्योंकि सारे ब्लॉकचेन पे ये डेटा अवेलेबल हो गया है। जब टेम्पर नहीं होगा तो आपका ट्रांजैक्शन आराम से
दो नेटवर्क पे वो सेंड जो किए हैं वो ट्रांजेक्शन बॉब को रिसीव हो जाएगी। ये रही आपको एक जनरल ट्रांजेक्शन कैसे होती है ब्लॉकचेन पे, या प्रोसेस कैसे होती है। जब हम बात करेंगे ब्लॉकचेन के स्ट्रक्चर की, तो जो हमने बोला कि हर ब्लॉक एक ब्लॉक होती है, जो नोड होती है वो एक्चुअली वो ब्लॉक होती है, और हर ब्लॉक के पास उसका अपना हैश होगा, तो हैश ऑफ ब्लॉक रहेगी। उसी तरह आपको दूसरे ब्लॉक्स कनेक्टेड होंगे, तो जैसे दूसरे ब्लॉक कनेक्टेड होंगे तो पिछले ब्लॉक्स का हैश वो नेक्स्ट ब्लॉक में रहेगा। इसलिए हमने कहा कि ये सारे हैश फॉर्म में रहते हैं, ना कि पॉइंटर के फॉर्म में। इसी तरह सारे कनेक्टेड होंगे और सारे एक दूसरे का रिकॉर्ड अगले में ऐड होते चला जाएगा। ये जनरल एक ब्लॉकचेन का स्ट्रक्चर है, किसी भी आप इस ब्लॉकचेन की बात करेंगे तो। ओके, सो जनरल टर्म जैसे आपने पढ़ा होगा हैशिंग, हैशिंग एल्गोरिथम आपने पढ़ा है? डियर स्टूडेंट, आपने हैशिंग एल्गोरिथम पढ़ा है? Yes, sir. है ना, इनक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी आता है। जैसे हैशिंग में क्या होता है कि आपका कोई टेक्स्ट है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, राइट। हमने क्या किया, हमने एक हैश फंक्शन यूज किया जो कि अपना हैशिंग एल्गोरिथम है SHA 256। ठीक है, इस 256 में हमने तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो एल्गोरिथम है इस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देगा कुछ हेक्साडेसिमल में, मतलब कोई लेटर नंबर मिलाकर आ जाएगा, और 256 बिट्स का होगा। आप देख लीजिए यहाँ पे। अब इससे किसी को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है हैश, तो इस तरीके से एक्चुअली हैश जनरेट होता है। तो यही हैश यूज किया जाता है आपको ब्लॉकचेन नेटवर्क पे, और बिटकॉइन जो है आपका SHA 256 एल्गोरिथम पे ही डिपेंडेंट है, और इस तरह से जनरेट होती है। हैश फंक्शन का प्रॉपर्टीज क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी आप हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, जैसे वो कन्वर्ट होगा SH 256 में, जो आउटपुट आएगा उसका आउटपुट इस फॉर्मेट में आएगा। तो इस फॉर्मेट में तो कोई इसको समझ नहीं आया, मतलब ये आपका इनक्रिप्टेड हो गया। तो यहाँ पे क्या है प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनिस्टिक है, मतलब सेम इनपुट, ओके, बट आउटपुट सेम आएगा, लेकिन क्या होगा कि मैकेनिज्म जो होगी वो वे जो है वो डिफरेंट वे होके जाएगी वेरीफाई के लिए। नॉन इन्वर्टेबल है, मतलब एक बार हैश आ गया, मतलब जनरेट हो गई, उसको आप कोई भी मॉडिफिकेशन उस हैश को नहीं कर सकते। ये यूनिफॉर्म है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैश वैल्यू इज द सेम एज एनी अदर। ठीक है, मतलब अगर आप कोई, जैसे एग्जांपल, आप अगर कोई पजल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एंड द पजल हैज नॉट सॉल्विंग स्ट्रेटजी एक्सेप्ट ब्रूट फोर्स, राइट, मतलब वो पजल को आप बिना ब्रूट फोर्स अटैक के, ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम के आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर बिग डेटा एनालिटिक आपको वहां पे भी हेल्प नहीं करेगा। तो ये एक यूनिफॉर्म है, ये आपको इसको कोई भी, अगर ये आपका SHA 256 से इनक्रिप्ट हुआ है तो कोई भी दूसरा स्ट्रेटेजी यहाँ पे इसको हैक नहीं कर सकता, इसको चेंज नहीं कर सकती है। और कोलिजन रेसिस्टेंस है, मतलब ये इट इज लाइक इनफिजिबल टू फाइंड टू इनपुट। ठीक है, लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट में जो हमारा मिला और आउटपुट में जो आ रहा है, तो ये आप इजीली इसको कोई लेकर, इसको कोई ये नहीं कर सकता है कि चलो इसको निकालते हैं डेटा क्या है, वो नहीं हो सकती है। जिसके पास प्राइवेट की होगी सिर्फ वही कर पाएगा। ओके, अब ये जो डायग्राम दिख रहा है, अब बात आएगी कि बिटकॉइन के बारे में। ठीक है, सो इन US दे ट्रस्ट एक्चुअली। ओके, अब देख सकते हैं जो डायग्राम है पीछे में बहुत सारे डायग्राम रन हो रहे हैं, ये एक्चुअली ये बिटकॉइन माइनर्स है। ठीक है, बिटकॉइन माइनिंग का ये डायग्राम है, एक लाइक अ डेटा सेंटर है। ठीक है, तो जब हम बिटकॉइन की बात करेंगे तो बिटकॉइन जो है हमारा वो सारा रिलेटेड है लाइक ब्लॉकचेन का, क्रिप्टोग्राफी, इकोनॉमिक्स, गेम थ्योरी, डिसेंट्रलाइज्ड कंसेंसस, ऑल टुगेदर इन बिटकॉइन। ठीक है, सो ये एक
पूरा एक एडवांस टेक्नोलॉजी है और इससे सारे कनेक्टेड है। हम बात किए थे क्रिप्टो इकोनॉमिक्स की, तो क्रिप्टो इकोनॉमिक्स 2 वर्ड हो गया, क्रिप्टो और एक इकोनॉमिक्स। क्रिप्टो का मतलब हो गया सिक्योर हिस्ट्री ऑफ ट्रांजैक्शन, और इकोनॉमिक्स में हो गया आपका ये यूज ऑफ इकोनॉमिक्स इंसेंटिव, मतलब जो भी इस चीज को कोई कर रहा है तो उसको एज ए इंसेंटिव के तौर में इकोनॉमिकली कुछ उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन पे उसको मिलता है जो माइनर्स होते हैं, और ये प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेस और हमेशा ये बढ़ते जा रहा है जितना, तो इकोनॉमिकली ये रिवॉर्ड आपको मिलती जाएगी उसका। हमने बात किया था कि बिटकॉइन के बारे में, जो आपको बताया, ये आप लिंक ये नेट पे डालेंगे तो आपको इसको डिटेल्स, कुछ और डिटेल्स मिल जाएंगे बिटकॉइन के बारे में, ठीक है। और जैसा बताया कि ये 2009 में फर्स्ट बिटकॉइन इशू हुआ था, मतलब क्रिएट किया गया था और माइन किया गया था। तो जब बिटकॉइन की बात करेंगे तो वो होता है माइनिंग, ठीक है। तो पहले माइन किया जाता है, मतलब क्रिएटेड हुआ और नेटवर्क पे आया, ठीक है। और जैसा बताया कि आपको ये सिक्योर है, ठीक है, और इसको एज ए करेंसी, इसलिए उसके बाद इसको नाम दिया गया क्रिप्टो करेंसी। इसको करेंसी दैट मीन्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दैट मीन्स अ सिस्टम ऑफ मनी, मतलब हम इसको पैसे के रूप में यूज करने लगे। और इस जो बंदे ने किया उसका नाम था सतोशी नाकामोटो, और कोई रियल फोटो अभी भी इंटरनेट पे नहीं है, ये एक अनआइडेंटिफाइड पर्सन है, इट्स लाइक अ स्यूडोनिम, दैट मीन्स ये नाम सही है या कौन सा बंदा है कोई इसको नहीं जानता है, किसी ने इसको नहीं देखा, ठीक है। और ये कभी भी अभी भी तक सामने नहीं आया कि हाँ हमने डेवलप किया है बिटकॉइन को, क्योंकि उसको लोग खोज रहे हैं कि कौन है जिसने इस चीज को, इस टेक्नोलॉजी को इवॉल्व किया। और जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, सेंड और रिसीव करते हैं, वो सारा पब्लिक एड्रेस के थ्रू होता है। मतलब जैसे आप किसी को ईमेल भेजना है तो आप क्या करते हैं, या किसी को लेटर भेजना है तो आप क्या करते हैं, उसका एड्रेस लिखते हैं। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे भी पब्लिक एड्रेस होती है, और जो ट्रांजेक्शन सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए यूज होती है। प्राइवेट की यूज किया जाता है, मतलब अगर आपके पास ट्रांजेक्शन है और आप किसी और को भेजना चाहते हैं तो आपके पास प्राइवेट की है, तभी आप ट्रांजेक्शन भेज सकते हैं, मतलब तभी आप उसके ऑनर कहलाएंगे। तो ऑनर ऑफ प्राइवेट की, द ऑनर ऑफ द बिटकॉइन, वही उसका ऑनर होगा। तो इसको हम कहते हैं पोसेशन ऑफ द प्राइवेट कीज ओनरशिप। यहाँ पे कोई अकाउंट, मतलब अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ट्रांजेक्शन ही होती है, और ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट डिजिटली है, कोई फिजिकल मेंटेनेंस या कोई फिजिकल सिस्टम की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो जो बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी अडॉप्ट हुआ, तो इसकी जो यूजेस है वो इतने सारे डिफरेंट एरिया में स्प्रेड हो गए, जैसे करेंसी के रूप में, डिजिटल कैश के रूप में, डिजिटल एसेट्स के रूप में, इन्वेस्टमेंट के रूप में, सिक्योरिटी है, कमोडिटी है, प्रॉपर्टी है, डिजिटल करेंसीज, हॉबीज, फेमस यूज ऑफ ब्लॉकचेन, प्रोटोकॉल, नेटवर्क, ये सारे एरिया में ये स्प्रेड हो गए और लोग आज उसे यूज कर रहे हैं। सिक्योरिटी में भी यूज कर रहे हैं, कमोडिटी में बहुत सारे फिनेंशियल सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, वो बिटकॉइन, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत सारे ऐसे चीजेस हैं। जो हमने बात किया कि प्रॉपर्टीज, बिटकॉइन की प्रॉपर्टीज क्या है, अभी तक हम बात कर रहे थे ब्लॉकचेन की, तो बिटकॉइन की प्रॉपर्टीज सेम सिमिलर टू आपका ब्लॉकचेन ही आएगा, मतलब ये ओपन होगा, बहुत फास्ट है, कोई भी ट्रांजेक्शन मिनिमम जो कंप्लीट होती है 10 मिनट्स लगती है ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने में, परमिशन लेस है, किसी भी सेंट्रलाइज्ड का परमिशन की जरूरत नहीं है, सीडोनिम्स है, ओके, सिक्योर्ड है क्रिप्टोग्राफी के थ्रू, ठीक है, रिकॉर्ड जो होता है वो पब्लिक ब्लॉकचेन पे इजीली ट्रेस किया जा सकता है, फंगेबल है, मतलब कोई भी अल्टर करने की कोशिश कर सकता है, फिर ग्लोबली अवेलेबल है, डिसेंट्रलाइज्ड है, पी टू पी है, वोलाटाइल है। वोलाटाइल हमने क्यों किया, क्योंकि ये जब हम आप इसको करेंसी के तौर में यूज करते रहेंगे तो ऑब्वियसली इसकी जो प्राइस है अप डाउन होती रहती है, मतलब फिएट करेंसी, फिएट क्या होता है, जैसे हमारा इंडियन रुपीज, वो फिएट करेंसी कहा जाता है, डॉलर फिएट करेंसी है, ओके, फियाट। और जो क्रिप्टो करेंसी है वो वोलाटाइल है, मतलब वो कभी भी किसी भी वक्त अप और डाउन हो सकती है,
ठीक है, फिएट करेंसी के कंपेयर में। डिविजिबल है, ट्रस्टलेस है, कोई इंटरमीडिएटेड नहीं है, लेकिन लिमिटेड सप्लाई है। जो लिमिटेड बिटकॉइन की सप्लाई है वो टोटल 21 मिलियन सप्लाई है। ओके, तो जो हमने बात किया आपको कि बिटकॉइन का, तो 2007 में ही नाकामोटो, जो सतोशी नाकामोटो है, वो बिटकॉइन पे बिगिंस किए थे वर्क करने के लिए। और 2008 में ये bitcoin.org वेबसाइट रजिस्टर हुआ और 31 अक्टूबर 2008 को पहला व्हाइट पेपर पब्लिश हुआ क्रिप्टो मेलिंग लिस्ट में। ठीक है, और जनवरी 2009 में जेनेसिस ब्लॉक, मतलब जो पहला ब्लॉक क्रिएट हुआ, पहला बिटकॉइन जो माइन हुआ, वो कहलाया जेनेसिस ब्लॉक 0, और वो जनवरी 2019 में 9 में हुआ था। फिर उसके बाद जैसे ये हो गया, उसके बाद उस कोड जो है वो पब्लिकली अवेलेबल कर दी गई। आप गिटहब पे जाएंगे तो आपको गिटहब पे इसकी कोड ब्लॉकचेन या बिटकॉइन वेबसाइट से अभी आपको मिल जाएगी। फिर जनवरी 12 को इसका ट्रांजैक्शन, पहला ट्रांजैक्शन हुआ और 170 ब्लॉक हुआ। सतोशी नाकामोटो ने, एक बंदा था जिसको फेने, उसको 170 ब्लॉक, उसको यानी कुछ ट्रांजैक्शन किया गया। फिर 2009 में पहला एक्सचेंज लॉन्च हुआ। ठीक है, तो उस समय जो बिटकॉइन की कीमत थी, एक बिटकॉइन की प्राइस 1 यूएसडी, तो हो सकता 2009 में एक बिटकॉइन मतलब 1 यूएसडीटी आपका हो गया 30 रुपया के बराबर होगा या 20 रुपया के बराबर होगी। ठीक है, 40 रुपए के आसपास होनी चाहिए, 40 रुपए। 40 रुपया में 1300 बिटकॉइन मिलते थे। ठीक है, कितने में गैस, कितने में? हेलो, 40 रुपीज। 40 रुपीज में कितने? 1300 बिटकॉइन। ठीक है, उसकी बात आएगी अब बाद में। 2010 में क्या हुआ? फिर प्रोग्रामर को 10,000 बीटीसी, जो एक बंदा था, उसकी भी फोटो हम आपको दिखाएंगे। पिज्जा आप लोग खाते हैं? पिज्जा किन किन को चाहिए? भूख लगी है? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है, तो उस समय 2010 में मतलब 21 मई को एक बंदे ने 2 पिज्जा खरीदा था, तो 10,000 बिटकॉइन पे करके उसने 2 पिज्जा खरीदा था। ठीक है, फिर 2010 में माइनिंग पूल इस्टेब्लिश हुआ, मतलब जितने सारे माइनर्स कनेक्टेड होते गए। और 2012 में जो है विकीलीक्स कंपनी, वर्डप्रेस कंपनी बिटकॉइन में पेमेंट लेना एक्सेप्ट की। फिर 2013 में क्या किया? एफबीआई ने शट डाउन किया एक सिल्क रोड, जैसे एक ईबे की कंपनी थी जहां पे इलीगल एक्टिविटीज होती थी, ड्रग्स का बाय सेल, और उन्होंने 1,44,000 बीटीसी को सीज किया था 2013 में। फिर 2013 में निकोसिया, यू ऑफ निकोसिया बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया फॉर ट्यूशन के लिए। ठीक है, फिर 2014 में एक एक्सचेंज है एमटी गॉक्स एक्सचेंज थी, वो हैक हो गई। मतलब क्योंकि जैसे एक्सचेंज पे हुआ, डेटा ऑब्वियसली चोरी होगी, तो एक्सचेंज पे जाने के बाद ये हैक हो गई और 7,44,000 ये बिटकॉइन चोरी हो गया वहां से। फिर 2017 में तो बिटकॉइन का एक कहलाता है फोर्क, मतलब वो डिवाइड होता है या उसका अपग्रेडेशन होती है। तो एक ये 2017 में फोर्क हुआ, मतलब डिवाइड हो गया 2 करेंसीज में, एक बिटकॉइन में और एक बिटकॉइन कैश में। ठीक है, और उसके बाद 2017 में एसीसी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, जो यूएस की एक, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, ठीक इसी तरह यूएस में होती है एसीसी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। उन्होंने डिनाई कर दिया कि बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, तो फिर भी उस समय जो थी, उस समय एक बिटकॉइन की कीमत करीब करीब 2017 दिसंबर एंड तक में 20,000 $20,000 तक गई थी। ठीक है, मतलब इंडियन रुपीज में करीब 14 लाख रुपए पे। और अभी 2021 में, ठीक है, एक्चुअली 2021 में ये आपका जो है बिटकॉइन, वो आपका $60,000 पे गया था, हाईएस्ट पीक पे एक बिटकॉइन की। तो अब आप एक मिनट,
तो आपको एक कैलकुलेट करके दिखाते हैं। कितने में हमने 2 पिज्जा खरीदा? 10,000 बिटकॉइन में, राइट? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, तो कितने में हमने 2 पिज्जा खरीदा? 10,000 बिटकॉइन में। ठीक है, उस समय इसकी कीमत कितनी थी? करीब 40 रुपये 50 रुपये के आसपास में। अगर गुना हम कर देंगे 50 रुपये के हिसाब से, मतलब इतने में उन्होंने खरीदा। तो अगर अब हम बात करेंगे आज के डेट में, अगर वो जिस बंदे ने खरीदा, अगर उसने रखा रहता 10,000 और मल्टीप्लाई कर लीजिए कितनी बिटकॉइन की कीमत जो गई थी, वो बिटकॉइन की कीमत गई है 50 लाख रुपया इंडियन मार्केट प्राइस के अनुसार। तो कितना हो गया? कोई काउंट करके बताएगा कितना हो गया है पैसा? $5,000 5,000 crore. करोड़। आप 5,000 crores. सोचिए 5,000 करोड़ में आप कितना पिज्जा खाएंगे? कितनी सारी पिज्जा कंपनी आप हर शहर में आप खुलवा देंगे, राइट? तो ये था पावर ऑफ बिटकॉइन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं, ये हम आपको बता देंगे ये भी कैसे देखा जाता है, कि आप देख सकते हैं। तो किसी भी एक क्रिप्टो या शेयर मार्केट में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं, तो ऑब्वियसली आप अपने अनुसार से कीजिएगा एनालिसिस करके। देखिए इसका जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली है, धीरे 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 गया और सीधे उसके बाद ऊपर चला गया, और आज के डेट में गिरा हुआ है इसलिए नीचे का है, लेकिन ये ऐसे बढ़ते गया। तो ये एक बिटकॉइन की चार्ट है, ये हमने कॉइन मार्केट कैप के थ्रू ली थी, और इसको ये आपको दिखाने की कोशिश की गई, हम आपको बताएंगे एंड में। ठीक है, तो जैसा सेम उसी तरह जैसा हमने आपको बताया ब्लॉकचेन जैसे वर्क करता है, ठीक उसी तरह यहाँ भी बिटकॉइन भी वर्क करता है। यहाँ पे क्या है, उसी तरह एक अलायंस ने बॉब को ट्रांजेक्शन भेजा, ट्रांजेक्शन नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट हुआ, उसके बाद चेक करेगा वैलिडेट है कि नहीं। अगर वैलिडेट है तो नोड प्रोपेगेट करेगा, मतलब आगे जाने के लिए आदेश देगा। जब आगे जाएगा तो यहाँ पे एक स्पेशल नोड यहाँ जाता है जिसको कहा जाता है माइनर। ओके, ठीक है, माइनर हो जाते हैं। तो ये माइनर क्या करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज हो जाता है। ठीक है, सेम ट्रांजेक्शन है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी यही भी ट्रांजेक्शन है। ठीक है, और जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे आपका कैसे सेंडर पे करेगा, ओके, फीस कैसे कलेक्ट होगी, वो चीज़ है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे ये सब जस्ट आपको हमने बताया कि अभी तक में ये एक बिटकॉइन जो होता है वो इतने सतोशी के बराबर होता है, 10 करोड़ के सतोशी के बराबर में होता है। ओके, ठीक है, तो ये सब बिटकॉइन के बारे में है। ठीक है, ये आपका है सप्लाई, ये माइनिंग। ठीक है, तो कैसे रजिस्टर करेंगे वो भी आपको बताते हैं। तो ये आपका प्रूफ ऑफ वर्क। ठीक है, ये चीज़ है, ये आप देख सकते हैं, जैसे ये माइनर्स का है। ठीक है, तो एक मिनट, ये सारे माइनर्स है। ठीक है, तो ये माइनर्स क्या होते हैं कि जैसे हमने आपको बताया पहले डायग्राम में देख रहे हैं कि किसी ने अपना हार्डवेयर ग्राफिक्स कार्ड वगैरह लगा के इंटरनेट सब चीज़ वो माइन कर रहा है। दूसरे में देख रहे हैं कि वो फिएट करेंसी देकर उसको ट्रांजेक्शन कर रहा है। एक और यूएस में जैसे एटीएम होता है, ठीक उसी तरह बिटकॉइन की मशीन ही लगाया था, बीटीएम, उसको बिटकॉइन एटीएम मशीन ही उसको बनाया गया। ठीक है, तो आप स्टोर कर सकते हैं बिटकॉइन को बिटकॉइन के वॉलेट में। ठीक है, वो बहुत सारे एक्सचेंज भी है, वहाँ पे भी आप स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद आया था आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो है विटालिक बटरिन, अभी आपने न्यूज़ में भी आपने देखा होगा कि एक कंपनी ने $2 मिलियन
$2 मिलियन का डोनेट किया था हमारे इंडियन कोविड रिलीफ फंड के लिए इंडिया में। यही बंदा है, इसी ने 2 मिलियन वर्थ का इथीरियम इसने डोनेट किया था, यही बंदा है। और इसी ने एक दूसरा कॉइन बनाया जिसको कहा गया इथीरियम, ETH, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और जितने सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जितने सारे इंडिया में भी रन हो रहे हैं वो सारे इथीरियम बेस्ड होते हैं, और इसी बंदे ने उसको डेवलप किया। ठीक है, अब बात रही कि जैसे आप ब्लॉकचेन अगर आपको सीखना है, लैंग्वेज कैसे आप किस टेक्नोलॉजी पे बनाएंगे, तो ये कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने वो फ्रेमवर्क टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग यूज किया है। आप देख सकते हैं, जैसे इथीरियम की बात की, तो इथीरियम क्या है, आप देख रहे हैं बहुत जगह आपको C++, जावास्क्रिप्ट, बहुत कम ही आपको नया टेक्नोलॉजी का नाम मिलेगा। अगर आप C++, एक EOS है, EOS भी एक कॉइन है, ठीक है, तो ये C++ पे आधारित है। वेब असेंबली है, C है, C++ है, एंड कंसेंसस DPoS है। देख रहे हैं, जावा, कोटलिन, आपको पाइथन, और साथ में इसमें आता है आपका, जब आप डेवलप करने जाएंगे तो इथेरियम पे, तो आपको यूज करना पड़ेगा सॉलिडिटी। ठीक है, सॉलिडिटी में आपको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, सॉलिडिटी बनानी पड़ेगी, और सॉलिडिटी के थ्रू ही आप जितने सारे कोड होंगे वो सारे आपके आप यूज कर सकते हैं कंप्लीटली। जावास्क्रिप्ट का, C++ का, या पाइथन भी आप यूज कर सकते हैं, Node.js भी यूज कर सकते हैं। ये आपको डिसाइड करना है किस टेक्नोलॉजी में आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारे एप्लीकेशन एरिया है जिस पे अभी काम चल रहा है। जैसे मेडिकल डेटा, तो किसी भी इंडिविजुअल कस्टमर का, जैसे जो पेशेंट होते हैं उनकी प्राइवेसी है, कोई भी डिजीज हो तो दूसरे हॉस्पिटल में या दूसरे अननोन लोगों को नहीं मालूम होना चाहिए। तो क्या हुआ, ऑलरेडी ये डेवलप हो चुकी है, तो मेडिकल डेटा जितनी है उसकी एनालिसिस की, वो सारे ब्लॉकचेन के थ्रू शेयर हो रहे हैं। मतलब उसी डॉक्टर को मिलेगा जिस डॉक्टर से अपॉइंट हो रहा है, सारे डॉक्टर उसके रिपोर्ट नहीं देख सकते। तो अगर मैं या कोई XYZ अगर पेशेंट है और उसका अगर कुछ डिजीज है, तो उस हॉस्पिटल में जितने सारे डॉक्टर हैं, ये नहीं कि डॉक्टर लॉग इन करेंगे और चेक कर लेंगे हाँ इसका है, वो उसी डॉक्टर के पास जाएगा जिसके पास अपॉइंटमेंट है, दूसरे डॉक्टर के पास नहीं दिखेगा। NFT मार्केट प्लेस, म्यूजिक रॉयल्टी में इसको यूज किया जा रहा है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए यूज किया जा रहा है। जैसे एक कंपनी है XRP, रिपल, तो वो कंपनी बैंक को ट्रांजेक्शन, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांजेक्शन करने के लिए हेल्प कर रही है। उसके बाद IoT जो भी है, रियल टाइम IoT ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पर यूज किया जा रहा है। पर्सनल आइडेंटिटी सिक्योरिटी, मतलब किसी को आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ओके, ठीक है, जैसे पैसा छुपाना, ऐसा करना, ठीक है, तो इस चीज के लिए लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसको। कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सकती है क्योंकि आप यहाँ पे छुपा नहीं सकते हो, ये सारा चीज हिडन है। सप्लाई चेन में जितने सारे सप्लाई चेन, मतलब बहुत बड़े बड़े शिप जो हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो आते हैं, लॉजिस्टिक जो लगेज को लेकर, जो सामान को लेकर आते हैं, उनका सारा डेटा ब्लॉकचेन पे जाता है। और वोटिंग मैकेनिज्म जो आपने बात कर रहे थे, वोटिंग सिस्टम के लिए, उस पर भी काम चल रही है, और आने वाले समय में जो वोटिंग सिस्टम है वो भी ब्लॉकचेन बेस्ड हो जाएगी। तो ये बहुत सारा डिफरेंट एरिया है जहाँ पे ब्लॉकचेन का एप्लीकेशन ऑलरेडी यूज हो रही है। ठीक है, और ये हमारा अभी ये जनवरी 2020 लास्ट ईयर में इंडियन गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया, ये नीति आयोग का, ये अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, लिंक भी हमने दिया है यहाँ पे, कि उन्होंने क्या किया है कि ट्रैक एंड ट्रेस ड्रग्स इन द फार्मेसी, यानी फार्मेसी सप्लाई चेन में जो भी ड्रग्स मेडिसिन सप्लाई होगी उसका ट्रैक करना, वो सिस्टम बना रहे हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट है, मतलब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कॉलेज खत्म हो गया, कहीं और आपने जॉब कर रहे हैं, आपका सर्टिफिकेट वेरीफाई करना है, तो कैसे वेरिफिकेशन होगा? आप मेल करोगे, वहाँ पे कोई बंदा इंडिविजुअली बैठा रहेगा, फिर लेटर बनाकर भेजेगा, फिर वेरीफाई होगा। वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, सारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप पेपर पढ़ सकते हैं, सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, आपको इससे कुछ और आइडिया मिलेगी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, तो यही बंदा है जिसने 22 मई 2010 को पापा जॉन्स कंपनी के थ्रू फ्लैश जेलो हैनिस नाम का
जिसने 2 बिटकॉइन खरीदा था 22 मई को, और यही 22 मई 2021 को एक बिटकॉइन की कीमत थी $373 मिलियन। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि क्या इसकी वैल्यू है बिटकॉइन की। ठीक है, ये एक रफली आइडिया है। आप देख सकते हैं 2009 में एक बिटकॉइन 50 पैसा का था, और आज अभी के टाइम में जो करंट वैल्यू है इसकी हाईएस्ट एक्चुअली 51 लाख पे गई थी, लेकिन अप्रैल की बात कर रहे हैं तो अप्रैल में 47 लाख रुपीस थी। आप देख सकते हैं इसका ग्रोथ। और ये अगले साल तो 2022, और ये गलत हो गया, 2022 में इसकी क्या होगी वैल्यू, एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली ये डबल ही होगा। तो ये एक है अनुमान लोगों की, और इससे पता चल जाएगा। तो बिटकॉइन में जो हमने जैसा बताया कि 2008 में पेपर पब्लिश हुआ था, 2009 में पहला एग्जिस्टेंस हुआ था, 2010 में पहली बार वो $1 हिट किया था, मतलब 40 रुपए के आसपास में हिट किया था। फिर 2017 में यानी नवंबर एंड में बुल रन उसको बोलते हैं, मतलब $20,000 पर हुआ था। और जैसे आरबीआई ने बोला कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके बाद इसकी मार्केट डाउन होगी। और 2021 में टेस्ला जो एलन मास्क है उसने ये प्रपोज किया था कि हम बिटकॉइन में भी पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, और $1.5 बिलियन का बिटकॉइन इवन टेस्ला ने खरीदा 2021 में। ठीक है, यही बंदा है जिसने इंडिया में कोविड रिलीफ फंड के लिए $2 मिलियन वर्थ का इथेरियम दिया कोविड रिलीफ फंड के लिए। और ये आपका जनरली 19 मई को पेपर में रिलीज हुआ था कि गवर्नमेंट जो है वो नया पैनल असाइन किया है जिससे क्रिप्टो का रेगुलेशन बनाया जा सके। इससे सारे लोग अगर यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होगी उस पर डिसीजन लिया जाएगा। ये आपका है। तो ये भी पेपर आप पढ़ सकते हैं, आप चले जाएं, आपको ये पेपर मिल जाएगा, आप इसे देख लें, आपको कुछ आइडिया मिलेगी इस पेपर से। और ये सब कुछ यूआरएल्स है जो कि हाइपरलेजर के बारे में, इथेरियम के बारे में, और कुछ बुक्स जो आपको रीड करनी है वो यहाँ पे दिया हुआ है। क्या आपको फॉलो करनी है और क्या कोर्स अवेलेबल है वो आप कोर्स रेफर कर सकते हैं। MIT का कोर्स है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोर्स है, आप इस पे आधारित हैं, आप इसको रेफर कर सकते हैं।